Hello friends, welcome to Educate Academy. My name is C. Raj Kakwani and today we will be starting with a very crucial concept of input tax credit. So before starting with the concept, let us understand four important terms which are essential to be understood before understanding the concept of input tax credit. So let's start with the first. So our first term is output. So friends, what is output? So whenever we sell goods to our customers or whenever we provide service to our customers, this supply of goods or provision of service is output. And whatever tax is collected by us on sale of goods or on supply of services is output tax. ठीक है. So first important term is output. So whatever we sell to our customers is our output. The tax that we collect on our sales is output tax. Third important term is input. Friends, whatever we purchase in order to sell it further, whatever we purchase in order to sell it further is our input. And the tax that we pay on our purchase, the tax that we pay on our inputs is input tax. ठीक है फ्रेंड्स. तो अगर हम कोई चीज बेचते हैं तो वो हमारा आउटपुट है, उस पे जो हमने टैक्स कलेक्ट किया वो आउटपुट टैक्स है. अगर हमने कोई चीज खरीदी तो हमारा वो बिजनेस इनपुट है और उस इनपुट पे हमने जो टैक्स पे किया उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स. Let's take an example. Mr. M, who is a manufacturer, Mr. W is a wholesaler, and Mr. C is a final consumer. Mr. M sold goods worth rupees 100, GST at the rate of 5%, which comes to 5 rupees, and the total amount comes to 105. So goods worth rupees 105 to Mr. W. Mr. W sold same goods to Mr. C at rupees 200 basic value plus 5% GST, that is rupees 10, and the total invoice value of rupees 210. So friends, in this case, goods sold by Mr. M is his output and tax collected by Mr. M from Mr. W is his output tax, and this output tax Mr. M will pay directly to the government. Whereas rupees 100 paid by Mr. W to Mr. M is his input and rupees 5 of tax paid on input by Mr. W to Mr. M is his input tax. Mr. W has sold goods worth rupees 200 to Mr. C, which is his output, and Mr. W collected rupees 10 as tax from Mr. C, which is his output tax. Now friends, the question arises is, what will Mr. M pay to the government? So Mr. M will directly pay rupees 5 to the government, which he has collected from Mr. W as output tax. Now the crucial question is, what will Mr. W pay to the government? Friends, when we understood the basics of indirect tax, जब हमने indirect tax का basic पढ़ा था, तब हमने ये समझा था कि इनडायरेक्ट टैक्स में हमको अपनी जेब से गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करना होता है, हमको अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करना होता है और गवर्नमेंट को पे करना होता है. लेकिन इस केस में मिस्टर डब्ल्यू ने अपने पॉकेट से रुपीस 5 ऑफ टैक्स मिस्टर एम को पे किया, जो कि मिस्टर एम ने सीधा गवर्नमेंट को पे किया. मिस्टर एम के पॉकेट से कोई टैक्स नहीं गया, लेकिन मिस्टर डब्ल्यू के पॉकेट से 5 रुपीस टैक्स गया है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के केस में नहीं होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट हमने इनडायरेक्ट टैक्स में यह पढ़ा था, बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड. सो इन दिस केस मिस्टर डब्ल्यू हैज कलेक्टेड टैक्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन रुपीज 200, दैट इज रुपीज 10 फ्रॉम मिस्टर सी, विच इज आउटपुट टैक्स फॉर मिस्टर डब्ल्यू. So Mr. W has shifted the burden of tax on Mr. C. Now, as per the first concept, so the first concept was
in indirect tax, the supplier should not pay any tax from his own pocket and he should collect it from his customer, right? So as per that concept, Mr. W should recover ₹5 paid to Mr. M from the burden shifted to Mr. C. That is what Mr. W should pay to the government. Mr. W should pay to the government the difference of ₹10 that he has collected from Mr. C and ₹5 that he paid to Mr. N. ठीक है. सो कहने का मतलब यह है, जो आउटपुट टैक्स मिस्टर डब्ल्यू ने कलेक्ट किया है मिस्टर सी से ₹10 का, उसमें से वो ₹5 माइनस करेंगे. ठीक है. कौन सा ₹5? ₹5 ऑफ इनपुट टैक्स. He will avail this ₹5 of input tax as credit and the remaining amount of ₹5 Mr. W will pay directly to the government. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है. अब फ्रेंड्स समझने वाली बात यह है कि why is government allowing us to reduce the input tax from the output tax and pay only the remaining amount to the government. So the reason is GST is the tax on value addition. कहने का मतलब यह है कि मिस्टर डब्ल्यू ने मिस्टर एम को ऑलरेडी ₹100 पे ₹5 टैक्स पे कर दिया था. तो मिस्टर डब्ल्यू ने जब ये गुड्स मिस्टर सी को सेल किए तो मिस्टर सी से मिस्टर डब्ल्यू ने कलेक्ट किए ₹200. तो मिस्टर डब्ल्यू ने वैल्यू एडिशन कितना किया? 200 माइनस 100. तो टैक्स कितने पे होना चाहिए? ₹100 पे, क्योंकि मिस्टर डब्ल्यू ने जब ₹100 पे ₹5 टैक्स मिस्टर एम को पे किया तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी ₹5 मिल चुके थे. अब मिस्टर डब्ल्यू ने जब ₹10 टैक्स मिस्टर सी से कलेक्ट किया, कौन सी अमाउंट पे? ₹200 पे. तो इस 200 में से ₹100 पे टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है जो मिस्टर एम ने गवर्नमेंट को किया है, और जो बाकी के ₹100 हैं उस पे 5% टैक्स मतलब ₹5 मिस्टर डब्ल्यू गवर्नमेंट को पे करेगा. तो इस तरीके से जीएसटी में डबल टैक्सेशन नहीं होता है. मतलब जीएसटी में एक अमाउंट पे केवल एक ही बार टैक्स लगता है. ये जो ₹100 है फ्रेंड्स, इस ₹100 पे टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है. यही गुड्स जब मिस्टर डब्ल्यू ने मिस्टर सी को बेचे तो उसने टैक्स मिस्टर सी से कलेक्ट किया 200 पे, लेकिन इस 200 में से 100 पे टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है जो कि मिस्टर एम ने गवर्नमेंट को पे किया है. तो मिस्टर डब्ल्यू क्या करेगा? जो बाकी के ₹100 हैं, जो वैल्यू एडिशन है, केवल उसी ₹100 पे 5% विच कम्स टू ₹5, उतना अमाउंट मिस्टर डब्ल्यू गवर्नमेंट को पे करेगा. सो द लॉजिक बिहाइंड दिस अवेलमेंट ऑफ ₹5 of input tax as credit is the concept of value addition, that GST is a tax on value addition and tax should be paid by Mr. W only on the value addition made by him. So he sold the goods at ₹200, he purchased it from Mr. M at ₹100, so the value addition made by Mr. W was ₹100. Tax rate being 5%, only ₹5 of tax will be paid by Mr. W to government. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है. सो फ्रेंड्स, इससे हमको क्या सीखने को मिला? हमको ये सीखने को मिला कि जो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन है वो शिफ्ट किया जा सकता है व्हेन वी आर डूइंग अ बिजनेस. जो इनपुट टैक्स है उसको हम एज क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, और आउटपुट टैक्स जो कलेक्ट किया उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे. तो अल्टीमेट बर्डन जो इनडायरेक्ट टैक्स का आता है वो आता है फ्रेंड्स फाइनल कंज्यूमर पे. फाइनल कंज्यूमर ही इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन बेयर करता है. फ्रेंड्स फाइनल कंज्यूमर मतलब सपोज मैं अगर नमकीन मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हूं, तो जो नमकीन मैंने सेल किया और मैंने उस पर जो आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, राइट, और जो नमकीन के रॉ मटेरियल मैंने परचेज किए तो उस पे जो मैंने टैक्स पे किया वो क्या है? मेरा इनपुट टैक्स. तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करके मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? बिजनेस. लेकिन मैंने जिस बंदे को नमकीन सेल किया, सपोज वो फाइनल कंज्यूमर है, वो आप या मेरे जैसा कोई बंदा है जो किसी शॉप पे जस्ट नमकीन खरीदने आया है, उसका नमकीन का कोई बिजनेस नहीं है.
या फिर मान लीजिए आप और हम कहीं पे लैपटॉप लेने जाते हैं, मोबाइल फोन लेने जाते हैं, और आपका और मेरा लैपटॉप और मोबाइल फोन का बिजनेस नहीं है, तो उस मोबाइल फोन पे जो टैक्स पे किया वो भी तो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो वो उसका बर्डन कौन बेयर करेगा? फाइनल कंज्यूमर बेयर करेगा। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रॉम टुडेज सेशन आर, whatever we purchase is our input, whatever we sell is our output. The tax that we collect on sale is output tax. The tax that we paid on purchase is our input tax, which is initially a burden on us. But when we sell the goods further, input tax can be availed as credit, that it can be reduced from output tax and remaining amount is paid to the government. And GST is a tax on value addition. जीएसटी में एक अमाउंट पे केवल एक ही बार टैक्स लगेगा। मैंने किसी से गुड्स खरीदे तो उसको मैंने 100 रुपए में सपोज गुड्स खरीदे तो 100 रुपए पे टैक्स मैंने उसको पे कर दिया। मैंने सपोज गुड्स को 150 रुपए में बेचा तो मैंने वैल्यू एडिशन कितना किया? 50 रुपए। तो मुझे गवर्नमेंट को केवल उस 50 रुपए पे टैक्स पे करना है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया, दोनों का डिफरेंस गवर्नमेंट को पे किया, राइट? तो वो पे कैसे करेंगे? ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास पहुंचेगी कैसे कि हमने कितना बिजनेस किया, हमने कितना टैक्स कलेक्ट किया? ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास पहुंचेगी कैसे कि हमने कितना गुड्स परचेज किया और कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया? सो ये चीज हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।